السلام علیکم ویورز، حماقتیں کے ساتھ میں ہوں اقرا حارث. میرے ساتھ موجود ہیں آفتاب، اقبال، مودی اور چودھری صاحب. اچھا چودھری صاحب، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام دنیا میں باقی رہے تو اپنے بچوں کو اچھے اخلاق سکھائیں. یہ بھی شیخ صاحب آخیا اسی. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جرکتا میرے نال وہی کر دینا یار. سر سے پہچانا انہوں نے ٹھیک ہے کہ مطلب کہ میرے بچے مطلب ٹھیک نہیں ہے. نہیں، اخلاقیات بہت اہم ہے. بیسٹ بندہ ہی وہ ہے جس کا اخلاق بہتر ہے. اخلاق ایک بہت بڑی میرے بچے اخلاق ہے وہ کہ آندے بندے ٹکر مار دینا کی مطلب ہے. تم نے کبھی بچوں کا خیال کیا، دیکھا ہے؟ ایسے شاندار اعلیٰ بچے نے لوڑ ہی نہیں ہے. میں پوچھا ہی کدی نہیں، میں تو انہوں نے کدی ویکھیا ہی نہیں. بس پھر ان کی اخلاقیات بہتر ہوں گی. اگر تمہاری دست برد سے محفوظ ہیں تو پھر یقیناً اچھے انسان ہوں. ساری گل صرف اس وجہ نہیں کی تھی. یا تابی آج میں بہت سیریس ہوئی. آپ میں نے ایک بہت سیریس بات کرنی ہے تم سے. کس دن آپ سیریس نہیں ہوتے؟ ہمیشہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ. بھائی اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت حساس آدمی ہے. میں ڈے ٹو ڈے گفتگو اس کے ساتھ کرتا ہوں نا. مودی ایز این آرٹسٹ بھی بہت حساس ہے، ایز اے پرسن بھی بہت حساس ہے. تو ہاں جی، حکم کیجئے. نہیں تابی، میں جس علاقے میں رہتا ہوں نا. ہاں جی. اچھا نہیں، یہ سیریس گفتگو ہے، تم سیدھے ہو کے بیٹھو، لیٹو نہیں یار. چیزیں لیٹنا یہ ہوتا ہے. دیکھو یہ میں یار تھوڑا سا ریلیکس ہو کے یہ بیٹھتا تو ان کا نہیں تھکاوٹاں نے جو شو شروع ہی ہوئے تسی اے کرن لگ پے. پہلے یہ دسو آندے کتھوں جے؟ کیا مطلب؟ آپ کہاں ہوتے ہیں جہاں سے یہاں آتے ہیں؟ میں جم سے آتا ہوں. جم سے تو جم میں تو بندہ تندرست ہو کے آندے، تسی آندے تھے لمبے پہ جاندے ہو. ایکسرسائز کر کے آتا ہے، فٹ ہو کے آتا ہے. تو میں تو بڑا فٹ ہوں. یہ تمہاری بکواس اگر بند ہو گئی ہو تو میں کچھ شروع کروں. ہاں جی تسی کرو. یہ کیسا معصوم ہے؟ یعنی اس کی بند یار فکرے کا خیال رکھتے ہیں. کیوں کہا تم نے کہ اگر تمہاری بکواس بند ہوگی؟ تو یار میری بات اتنی ضروری ہے. میں کیا اس وقت معاف ہوا ہوں؟ میں بالکل، میں جس علاقے میں رہتا ہوں نا تابی، وہاں کے کچھ 4-5 لوگ جو ہے انہوں نے ایک ڈیلیگیشن بنایا اور میرے پاس آئے ہیں. وہ مجھے کہنے لگے کہ یار آپ کا یہ جو پروگرام ہے، حالانکہ یہ ابھی شروع ہے لیکن ماشاءاللہ یہ اتنا زیادہ کلک ہو گیا، اتنے زیادہ لوگ اس کو دیکھنا شروع ہو گئے ہیں. تو وہ مجھے کہنے لگا کہ یار ہماری چھوٹی چھوٹی جو پرابلمز ہیں آپ ان کو بھی اپنے پروگرام میں ڈسکس کرو. ٹھیک. میں کہا جی بہت چھوٹی چھوٹی تو ہم نہیں کر سکتے، کوئی اگر اچھی سی مطلب انڈیویجول نہیں کر سکتے لیکن کولیکٹیو کوئی ایسی بات، انفرادی نہیں ہو سکتی، اجتماعی ضرور ہو سکتی. مثلا انہوں نے کیا بات کی؟ یار انہوں نے ینگسٹر کے بارے میں کہا ہے کہ نوجوان نسل جو ہے وہ برباد ہو رہی ہے. تبھی تمہیں پتہ ہے ہمارے علاقے میں پچھلے 4 مہینوں میں 3-4 ڈیتھ ہو گئی ہیں نوجوان لڑکوں کی. بھلا پوچھو کیوں؟ ون ویلنگ نہیں، یہ جو ڈرگ استعمال کرتے ہیں اس کی وجہ سے. ڈرگز، منشیات. تو وہ انہوں نے کہا کہ یار اپنے پروگرام میں آپ ضرور اس کو ڈسکس کریں اور نوجوانوں کو کچھ سمجھائیں تھوڑا سا. اتنا یہ بڑھ چکا ہے ٹرینڈ، اتنا بڑھ چکا ہے. آپ کی سوچ ہے کہ پاکستان میں اس وقت نشے کے عادی لوگوں کی تعداد کیا ہوگی؟ فیشن بنتا جا رہا ہے. یو این نے جو سٹیٹسٹکس فراہم کی ہیں ان کے مطابق 70 لاکھ پاکستانی نشئی ہیں اس وقت. 70 لاکھ ڈرگز دے. جی جی جی. سر اس میں عورتیں بھی شامل ہیں؟ 78% مرد ہیں، 22% عورتیں ہیں. اور ٹوٹل والیوم پتہ ہے اس گھنونے بزنس کا کیا ہے؟ 200 ارب روپیہ، اس سے زائد ہے. سر قانون اس پہ بھی موجود ہوگا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے. قانون ہے لیکن دیکھو نشے کئی طرح کے ہیں. آج کل تو جو بہت زیادہ ٹرینڈ ہے وہ بڑا خوفناک، بہت ہی میں سمجھتا ہوں لیتھل نشہ ہے. کوکین بڑا مہنگا ہے جو ہمہ شمہ کے بس کا روگ ہی نہیں ہے. لیکن جس نشے کا ارتکاب عام آدمی کرتا ہے وہ چرس ہے. چرس سب سے سستا، ایزیلی اویلیبل، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے اوپر کوئی لمبی چوڑی تعزیرات ہی نہیں ہے. وہ پرانا گھسا پٹا دقیانوسی قانون ہے، اس سے آرام سے. وہ یہ ایک ایسا جال ہے جس میں جگہ جگہ ٹک لگے ہوئے ہیں، جگہ جگہ سوراخ ہیں. اس میں آپ مچھلی کیا مگرمچھ بھی پھنس جائے دوسری طرف سے نکل جائے گا. کیوں؟ لوپ ہولز ہی اتنے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم نے یاد ہے پہلے بھی کہا تھا، ہر چیز پر قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے. ویسے ذمہ داری تے ماں پیو دی بھی ہے نا، بچیاں تے کیئر کرے. ماں باپ بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. یہ بھی تعلیم ہمارا میڈیا دے سکتا ہے. میں بارہا گزارش کر چکا ہوں کہ اپنے بچوں کو ٹریک کرو، ان کے اوپر ایک طرح کا ٹریکر لگاؤ. وہ کہاں جاتے ہیں، کس طرح کی کمپنی ہے، ان کی محفل اور ان کے مشاغل یہ کیا ہے.
बच्चों की उंगलियों पे देखें, फौरन पता चल जाता स्मोकर, उसकी उंगलियों से पता चल जाएगा, उसके होंठों से पता चल जाएगा। एडिक्ट्स जो होते हैं, और बहुत खौफनाक एडिक्शन है स्मोकिंग की, वो फिर घरों के अंदर भी फिर देखते हैं कौन से टॉयलेट्स इस्तेमाल करें जिनमें ख़ास तौर पर वो एहतमाम करते हैं कि एग्जॉस्ट फैन लगा हो, पंखा चल रहा हो, कोई ना कोई चीज़ वो खाते चबाते नजर आएंगे, ताकि माँ बाप को पता ना चले, शक ना हो, पता ना चले। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਮਰੂਦ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ये अमरूद क्यों ढूंढता फिरता था? अमरूद, ये यार तुम बचपन से ये काम कर रहे हो। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। नहीं नहीं, उसे बताने तो है नहीं, छाड़ नशा करने के बाद मुंह से जो बू आती है ना, ये लिकर का इस्तेमाल, उसके बाद उस बू को अमरूद के साथ ये न्यूट्रलाइज करते हैं। अमरूद की जो खुशबू है वो इंतहाई पंजेंट है। 50 फल पड़े होंगे ना, हाँ, तो उसकी आप आंखें बंद करके अमरूद तक पहुंच जाएंगे कि इन 50 फलों में अमरूद कहां पड़ा हुआ है। ये उसकी खासियत है, और इसी बू को ये लोग यूटिलाइज करते हैं, और पेरेंट्स को नहीं पता। मैं आज इस शो की वसातत से बताना चाह रहा हूं पेरेंट्स को कि जो बच्चा खुसूसी तौर पे अमरूद तलाश कर रहा हो, उसके सामान में से, उसके बैग में से अमरूद बरामद हो, तो चेक करें कि क्या है। तो याद जाने दो, याद तभी लोगों को कॉन्स्टिपेशन भी तो हो सकती है। ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥੇ ਅਮਰੂਦ ਵੇਖ ਲਿਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। चलो यार, ये अमरूद का तो हो गया ना कि शराब की बू को ख़त्म करता है। ये बताओ कि ये चरस की बू कैसे ख़त्म हो सकती है? चरस भी जहाँ पी जा रही हो ना, बड़ी सख्त बू आती है। जिल्लत है जिसका औरा आपको हर तरफ से घेरे हुए होता है और फौरन पता चल जाता है। ये भी पेरेंट्स को चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि किस चीज़ की बू है, और घर में आसपास बच्चे के कपड़ों से अगर ये बू आ रही है, या उसकी अलमारी में से बू आ रही अलमारी है, में से अगर वही बू आ रही है, तो क्यों है भाई? उन्हें अगर पता ही नहीं कि किस चीज़ की बू है तो चेक कैसे करेंगे? तो ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਚਰਸ ਵਿਖਾਈਏ ਕਿ ਇਹ ਚਰਸ ਹੈ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਜੋੜਾ ਬਣਾਓ ਜ਼ਰਾ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਜੋੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁਣ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅੱਬਾ ਜੀ ਚਰਸ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੈ यार? तुम कितने ऊत किस्म के यार? ਹੁਣ सवाल- ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚਰਸ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ ਬੰਦੇ। तो और क्या, उन्हें अगर पता हो तो बताना चाहिए। ये मुजाहिदाना काम है, आपको ये कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚਰਸ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਮੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੰਮੀ ਟੋਨ ਹੋ ਕੇ ਸੁੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਇਹਦੀ ਬੋ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। अच्छा जी, बताएं जी, इसकी बू कैसे ख़त्म करनी है? ये खत्म करने, ये मैं मदद के लिए नहीं बता रहा कि ये काम शुरू कर दो। मैं ये पेरेंट्स को, असातिज़ा को, बड़े बहन भाइयों को गाइड कर रहा हूँ कि अगर हॉस्टल, ख़ास तौर पे हॉस्टल के वार्डन्स, ये जो छापामार टीम हॉस्टल में होती है ना, ये अगर इन्हें महसूस हो कि हर दूसरे तीसरे दिन फलां कमरे में किसी कपड़े को, किसी टाकी को या रुई को आग लगी है, हर रोज़ ये को मामला होता है, क्योंकि ये भी बहुत खौफनाक, बड़ी पंजेंट बू है, ये सारी बदबुओं पर हावी हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई और बू होती है जिसे छुपाने के लिए किया जाता है। ये बू फैलाई जा रही है। जी ਵੈਸੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਫਰੀਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ। भाई, मेरा मुशाहिदा बड़ा अच्छा है। ਮੁਸ਼ਾਹਿਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ। हाँ, मैंने बड़े लोग पकड़े हैं इस तरह। मैं चीफ प्रीफेक्ट था भाई। तो कितने आराम सी बात को चेंज ਔਰ कर ਮੈਨੂੰ दिया वो। ਯਕੀਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈੜੀ ਚਰਸ ਔਰ ਚੰਗੀ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। हाँ हाँ, बिल्कुल, ये भी पता। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਚਰਸ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ, ये देखो ये गर्दा पियो। मैं बाय द वे मैं जूते भी मारा करता था। कोई और हाल शुरू कर ली फिर। अच्छा सर, ये मुख्तलिफ रिहेबिलिटेशन सेंटर्स भी तो हैं जो मनशियात से जान छुड़वाते हैं। ये जान छुड़वाने की कैपेसिटी इनकी ज़रा देखें, 30,000 बंदे टोटल पूरे मुल्क के जितने रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं उनकी कैपेसिटी है 30,000 पेशेंट्स। और आपके मुल्क में यूएन के मुताबिक, हालांकि यूएन हमेशा हाथ हौला रखता है, 70 लाख हैं। ये कई 100 गुना ज्यादा। डिमांड एंड सप्लाई का फर्क देखें कितना है। ये तो बिजनेस बना रखा है लोगों ने, और बड़ा कामयाब बिजनेस है। ये 45,000 से लेकर 1.5 लाख रुपया फी पेशेंट लगता है, और आम तौर पर 80% नाकामी होती है। ये भी ढकोसला है, महज ढकोसला, क्योंकि लोग एक बारीक नुक्ते को इग्नोर करते हैं कि मनशियात से दूर सिर्फ ड्रग्स के साथ, ट्रीटमेंट के साथ और महफिल और सोबत चेंज करने से ही नहीं फर्क पड़ता, साथ उनकी स्पिरिचुअल स्कूलिंग की ज़रूरत है।
ਲੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ। संगल डाल के हाँ जी, बांध दो। ये जंजीरों में जगह, ये भी एक जहालत की इंतहा है। आपका ख्याल है कि वो ठीक हो जाएगा, कभी तो इस चुंगल से निकलेगा, जिस दिन निकलेगा सबसे पहले यही काम करेगा, और ज्यादा करेगा वो। और इस दफा वो रिएक्शनरी होके करेगा। क्यों? आपने उसकी ईगो हर्ट की है, आपने उसको जानवर बनाया है। वो कहता है कि अब मैं उससे 10 गुना ज्यादा ही करके दिखाऊंगा। सर, तो हमारे यहाँ स्मोकिंग का रुझान क्यों बढ़ता जा रहा है? कई तो खवातीन को भी स्मोकिंग करते मैंने देखा है। खवातीन बहुत स्मोकिंग करती हैं, और ख़ास तौर पे आपकी पढ़ी लिखी खवातीन। वो तो फैशन समझ के करती है ना। फैशन अपनी जगह पर, ये पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से है जहाँ खुला सिगरेट मिलता है। मतलब आप 4 सिगरेट लेना चाहें आप ले सकते हैं, आप अमेरिका बरतानिया में नहीं ले सकते, पूरा पैकेट खरीदना पड़ेगा। और फिर सिगरेट वहाँ पर इतना महंगा है, एक पैकेट बंदा बमुश्किल अफोर्ड कर सकता है, यहाँ तो बहुत सस्ता है, यहाँ तो ऑलमोस्ट ड्यूटी फ्री है। सर, कुछ खवातीन में ये कॉन्सेप्ट भी है कि सिगरेट से आपका वेट रिड्यूस होता है, वो इसलिए भी पीती हैं। सब नफ्सियाती ढकोसले हैं। सिगरेट ही नहीं, चरस का इस्तेमाल भी, बहुत सारे दीगर मसाइल और मामलात को ओवरकम करने के लिए वो इसका इस्तेमाल करते। कुछ लोग तकरीर नहीं कर सकते जब तक एक आध पैग ना लगाएं, ये नफ्सियाती है। कुछ लोग टॉयलेट नहीं जाते जब तक एक आध सिगरेट उनके हाथ में ना हो। इसलिए तो एक दबी बाथरूम में रखी हुई है, रखी होती है लोगों ने। और बाथरूम में भी, ये भी पेरेंट्स के लिए एक छोटी सी गुजारिश है कि चेक करें कि बाथरूम्स में माचिसें और छुपी हुई माचिसें तो नहीं पड़ी, लाइटर तो नहीं पड़ा वहां पे। फिर डस्टबिन्स भी चेक करनी बहुत जरूरी है। लो जी, ऐश हो तो बाद ना कल बीबियां घर तलाशियां लेंदी फिरनगियां। तो अच्छी बात है ना यार, हमारा मकसद यही है। ये बीबियां हाथ पे हाथ धरे बैठी हैं, क्यों? बच्चे जब पैदा किए हैं तो फिर उनकी निगरानी भी करें, उनकी निगहदाश्त करें। पहले बहुत आसान होता था, अब बहुत मुश्किल हो चुका है। अच्छे शहरी पैदा करना बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ी औलियाई है। सर, पहले तो हम एड्स भी देखते थे मीडिया के ऊपर कि बाप सिगरेट जला रहे तो बेटा भी कोशिश कर रहा है, बहुत पुराने एड्स ये चलते अब भी होते हैं। सिगरेट के हवाले से तो अब भी हो रहा है। ड्रग्स के पीछे लोग बिल्कुल नहीं जा रहे, पता नहीं क्यों। क्योंकि अब चाहिए ये नहीं कि ड्रग्स को बुरा कहना क्लीशे है, पूरी कायनात में हर कोई ड्रग्स को बुरा कहता है, ये कोई कमाल नहीं। आप उसके तदारुक के लिए देखिए, जैसे हमारी हुकूमत ने, पिछली हुकूमत ने 2010 में बीड़ा उठाया था कि जनाब हम अगले 5 साल में ड्रग फ्री कर देंगे मुल्क को, पर लेकिन नहीं, और एक कदम आगे नहीं बढ़ सके। 10% भी शायद रिजल्ट्स ना हो। इन्होंने सरकारी अस्पतालों में रिहेबिलिटेशन सेंटर्स खोलने की बात की थी, अलहदा से वार्ड बनाने की बात की थी, किसी पर अमल दरामद नहीं हो सका। क्यों? यही तो मैं पूछना चाहता हूँ। इसकी वजह यह है कि किसी सरकारी जमात की ये प्रायोरिटी है ही नहीं। प्रायोरिटी सिर्फ ये है, वो काम करो जो नजर आए, वो काम करो जिस पर आप नारे लगवा सकें, जिस पर वोट मांग सकें। इस पर किसने वोट देना आपको कि जी हमने रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनवाए थे? हालांकि आपकी नस्लें डिपेंड इस पर करती हैं। ਤੁਹਾਡੇ ख्याल है गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है? भाई इज्तिमाई तौर पर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, इनफरादी तौर पर आपके वालदैन की जिम्मेदारी है। वालदैन भी तो गवर्नमेंट होते हैं ना। एक घर के अंदर हुकूमत किसकी होती है? प्यो दी। कितने तकब्बर से कह रहा है प्यो दी। हाँ जी, प्यो दी होंदी है। हमारे घर तो नहीं थी प्यो की। नतीजा भी तो सामने है ना। व्यूअर्स, यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। ज़बान का वज़न बहुत हल्का होता है, लेकिन बहुत ही कम लोग इसे संभाल पाते हैं। मैं तो बुजुर्गा तो बड़ा तंग है। अब क्या हो गया यार? ये मेरे ख्याल में मेरे बारे ही लिखते रहते हैं सारा दिन। तुम्हारा तस्करा किया किसी ने? देखो वो देखते मेरे वालों ने ना, कैसी ट्रेजेडी है कि हम अकवाले ज़रीं लोगों के डिस्कस करते हैं, जो ही पढ़ते हैं हंसी निकल जाती है, क्योंकि ये अपने ऊपर ले लेते हैं। वो देखते मेरे वालों ने, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੁਣ मतलब है ज़बान ਦਾ ਕੀ वजन मतलब? इसका सीधा सीधा मतलब है, और खुद अपना दिमाग भी खर्च किया करो। अच्छा जी। अच्छा, आप इतने सुस्त क्यों हैं आज? तुम्हें कैसे लगा कि मैं सुस्त हूँ? इसलिए कि 35 सेकंड की गुफ्तगू में तुमने अपनी चोंच नहीं खोली। तुम सुस्त ही हो इसलिए। ये सुस्त नहीं गा, आज बहुत सुस्त रहेगा ये। क्यों, क्या किया है इसने? जनाब खाने तो आ रहे हैं ना। ओए होए, खाना खा के हाँ जी, एक दावत सी उत्थे नाल लै गया। और ये खाता भी बहुत है। मैं कहंदा अल्लाह माफ करे, अज जेड़ी ਇਹਦੀ प्लेट मैं पहाड़ी वेखी है ना।
ہوگا. ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਪਹਾੜੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਬਈ ਢੇਰ ਲਾਇਆ ਪਲੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਖਾਣਾ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸੀ. हालांकि मुंह इसका एक मील से नजर आ जाता है. तभी यार वो तो चलो फजूल आदमी है, फजूल बातें करता है. तुम तो कोई अकल को हाथ मारो, पढ़े लिखे आदमी हो यार, कैसी बातें कर मैं रहे हो. इसलिए कह रहा हूं कि मैंने तुम्हें खाना खाते देखा है. दावतों में तुम खाने का जो हशर करते हो, बल्कि एक्चुअली अपना हशर कर रहे होते हो. ओ यार तो दावतों में कौन सा रोज रोज जाना होता है, कभी कभी नसीब होती है. हाय. तुमने ऊंट की मिसाल नहीं सुनी कि वो जब सहरा उसने क्रॉस करना होता है ना, तो वो 10 दिन का पानी जखीरा कर लेता अपने अंदर. तो तुमने कौन सा दरिया अबूर करना है, कौन सा सहरा अबूर करना है. कूड़ शख्स ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਸਨ. क्यों? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਜਾਓ, ਇਧਰ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਭਾਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੇ ਮਿਕਸ ਕੀਤੀ ਵਿੱਚ. तौबा तौबा तौबा. ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਿਕਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ. हाँ, लोग सालन स्वीट डिश के अंदर डाल देते हैं. ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਚਟਨੀ ਫਿਰਨੀ ਚ ਵੇਖੀ ਹੈ? ओए होए, फिर नहीं में ਉਹਦੇ ਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਨਾਬ. वो कभी खा के देखो, बड़ा मजा आता है उसका. मैं पागल हूँ खा के. एक नया टेस्ट है. और आपने क्या कुछ मिक्स किया हुआ था? मैं बड़ा कुछ मिक्स करता हूँ. मैं कस्टर्ड पे अचार डाल के खाता हूँ, बड़ा मजा आता है. पागल हो ना इसलिए. ये देखा ना, इसलिए तो तुम इस तरह की हरकतें करते ਔਰ हो. ਪੂਰੀ ਦਾਵਤ ਤੇ ਮੈਂ ਲੁਕਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ. क्यों? ਬੰਦੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਆਇਆ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? सर वैसे कितना बुरा कल्चर है ये जो हम दावतों पे इस तरह खानों की ठेलियां बना लेते हैं. और वो भी वैसे हमारे यहाँ ही है, जहाँ पर गुर्बत है, अफलास है, भूख है. और ये भूख सैकड़ों साल की नहीं, हजारों साल की है. कम से कम 5-7 हजार साल से ये महकूम कौम गुर्बत के साथ साथ भूख भी इंड्योर करती आ रही है. वो तभी यार दावतों में तो यही कुछ होता है, सब लोग यही कर रहे होते हैं. इसलिए कि कल्चर यही है. और ये ठीक कह रहा है. गरीब गुरबा ही नहीं, बड़े अमीर लोग जिनके अपने फ्रिज अनवाउ इकसाम के खानों से भरे अटे रहते हैं, वो भी यही कुछ करते हैं. बड़े पढ़े लिखे लोग भी कर रहे होते हैं. इसकी 2 वजूहात है बुनियादी. एक तो वो जो अजली और अबदी भूख जिसका मैंने तस्करा किया. दूसरा ये जो हमारे यहाँ खाने में डिले किया जाता है ना, खाना देने में, खाना खोलने में लेट कर दे. लेट क्यों लेट करते हैं? भैया फलां फुफी रहती है, अभी फलां चाची रहती है, अभी फलां मेहमान. ये इस वजह से इतना डिले कर देते हैं कि अच्छे खासे पढ़े लिखों की शुगर लो होनी शुरू हो जाती है. अब लोग क्या जेब में टॉफियां डाल के वलीमे पे जाएं कि जनाब वलीमा लेट होगा तो हमको होना तो यही चाहिए जिस तरह का हमारा कल्चर है. तो फिर वो पिल पड़ते हैं खाने पे. और जिस बंदे ने ये कहना होता है कि खाना खुल गया, वो ऐसा आकड़ के फिर रहा होता है उत्ते कि मैं कहना तो खुलना है. हाँ, वो अपने आप को बड़ी चीज समझ रहा होता है. फिर ये जो जिल्लत है ना, ये जो ढेरियां लगाने वाली, इसकी एक वजह आपकी वो ह्यूज साइज की प्लेट है. लेकिन एक बड़े साइज की प्लेट आपको थमा दी जाती है. भाई किसने कहा है कि इस तरह के खानों में आप इतनी बड़ी जो बजाते खुद डिश है, वो प्लेट नहीं है, एक डिश है जिसमें बाकायदा 4-5 बंदों का प्लेटर बन सकता है. वो बड़ी वजनी होती है, उसे उठाना बड़ा मुश्किल होता है. तो होना ये चाहिए कि छोटी प्लेट, ये जो क्वार्टर प्लेट्स हैं ना, प्लास्टिक की प्लेट्स हो, क्वार्टर प्लेट्स हो, अव्वल तो पेपर प्लेट्स होनी चाहिए. और हर एक को एक प्लेट दे दी जाए, भी इसके अलावा प्लेट कोई नहीं है. और अमेरिका में भी इसी तरह लोग, सर वहाँ तो कल्चर ही है. ये मतलब है कि आप एक प्लेट पकड़े और उसमें जितना डाल सकते हैं तमीज से डालें, और अगर फिर जरूरत हो तो दोबारा चले जाएं. अब हमारे यहाँ होता ही है कि हम बहुत बड़ी एक पहाड़ी बना देते हैं और फिर कान कनों की तरह उसके अंदर घुसने की कोशिश करते हैं. बंदा ज्यादा कितना खा लेगा? अगर आपकी भूख 4 बोटियों की है तो आप चले 6 डाल लें. आपने बोटियां डाली 15, तो बाकी सारी जाया होंगी. नहीं, तभी वो पता क्यों डालते हैं. पहला पूर जो आता है ना, वो गरम गरम, उसमें बोटियां ज्यादा होती हैं. अगला पूर जो आता है ना, उसमें कुछ नहीं होता, फिर वो इसलिए लालच में पहले डाल. और भावें 80-90 पूर आना, ये हर पूर च हुंदा है. एक बीमारी हो रहेगी इनदे अर्गियां नूं. वो क्या? अगर इन्होंने रात की दावत है ना, दोपहर का खाना छड़ देना है. हाँ, ये भी एक अजीब बात है कि जी आज हमने इंसाफ करना है. इंसाफ क्या? खाक इंसाफ करोगे तुम, अपना बेड़ा गर्क करोगे, दूसरे को भी जलील और रुसवा करोगे और अपना तमस्खर उड़वाओगे वहां पे. क्योंकि ये तुम्हारा ख्याल ही है कि लोग तुम्हें देख नहीं रहे, लोग तुम्हें ताड़ रहे हैं और देख रहे हैं कि कैसा जाहिल है, मुतलक है, कि इसका पेट भर चुका है, इसकी आंख अभी नहीं भरी. और आंख तो भरती नहीं आप जैसों की. लेकिन तभी मैं जाया नहीं करता, मैं जितना डालता हूँ उतना खाता हूँ. फिर ये डबल जुल्म है. विल्स यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए.
वेलकम बैक व्यूअर्स, सेगमेंट है मेन मुलाकात और आज हमारे साथ मौजूद है पहलवान और उनका पट्टा। बड़े दिनों बाद आए हैं आप आज। ਉਹ ਆਫਤਾਬ ਬਹੁ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਬੜਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਆਂਦਾ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭਲਵਾਨ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਹੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਲੈ पहलवान जी, आप हर दफा इसी को साथ क्यों ले आते हैं? हर दफा ख्वार करता है, आप किसी और शागिर्द को ले आया करें। ਇੱਕੋ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। क्यों जी, आपका शागिर्द ही कोई नहीं? ਉਹ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ ਭਲਵਾਨ ਦਾ ਇਹ ਭਾਟੀ ਹੈ ਮੋਚੀ ਲੁਹਾਰੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ लेकिन इसका क्या मतलब है? ਮੰਨਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। यानी कोई मानता नहीं कि इनका शागिर्द है। ਹਾਂਜੀ पहलवान जी, आप किस बिरते पे उन्हें कहते हैं कि आप उस्ताद हैं उनके? ਇਹ ਗਾਇਬਾਨਾ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਉਸਤਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਉਸਤਾਦ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਕੈਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੈਗਾ ਲੈ अच्छा पहलवान जी, कभी कोई बड़ी कुश्ती भी की है कि नहीं? ਲੈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਭਲਵਾਨ ਨੇ ਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈਗਾ ਦੱਸ ਜ਼ਰਾ ਉਹ WWF ਵਾਲੀ ओह, कहाँ? WWF ਵਾਲੀ ਲੈ अमेरिका गए? ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਓਏ ਲੈ ਦੱਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫੜਕਾਇਆ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਅੰਡਰਟੇਕਰ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ पहलवान जी, कभी देखा भी है अंडरटेकर? ਹੋਰ 24 ਘੰਟੇ ਇਨਕਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ टीवी पे। ਹਾਂਜੀ। वो सचमुच कुश्ती की उनके साथ? सर, इनकी हालत देख के तो नहीं लगता इन्होंने कुश्ती लड़ी होगी। इसने कभी ख्वाब में भी हॉक हॉगन नहीं देखा। ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। क्या हुआ जी, अमेरिका क्या किया क्या? ਬਸ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਲੈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗਣ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੈਂਗੜੇ ਸਾਰੇ ਗੋਰੇ ਹੱਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਿਆ ਕੋਈ ਮਲੰਗ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੇਲ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੇਲ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ। वेले वेले मिलने शुरू हो ਹਾਂ ਜੀ, 30-35 ਡਾਲਰ ਹੋਏ ਨੇ, ओए होए। ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਫਰੂਟ ਵੀ ਹੋਇਆ। क्या उन्होंने किया कि उस्ताद दे कोई बैचेस तो ये डांस क्यों किया जहाज के अंदर? खुशी नाल के अमेरिका पहुंच गए हैं। अभी भी डांस नहीं होता ये भंगड़ा होता है क्या निकिन कितना बुरा लगा होगा यार, ये तो पहलवान जी, ये कोई काम है करने वाला? ओए स्टार्टिंग है ये वो स्टार्टिंग ये तो अखाड़े में करते हैं। ਇਹ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਖਾੜਾ ਹੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਉਤਰਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਾਡਾ ਅਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। क्या हुआ क्या? ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, हाँ जी। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਾ ਭਰਿਓ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਰਿਸੇ ਰਾਹ ਲੈਣ ਕਿਉਂ ਤੋੜ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਚੰਡ ਦਿੱਤੀ। इसने? ਨਹੀਂ ਗੋਰੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਚੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿ ਮਾਵਾ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੌਲੀ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਚੱਲ ਪੁੱਤਰ ਲੈਣ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ओए अगे भी चल ले 2 मिनट ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 40 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੰਦਲ ਪਈ ਰਹੀ ਹੈ। यार ये कैसा पहलवान है, और दंदल भी पड़ती नहीं तुम्हें? ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਇਹਦੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੁੱਤਾ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। पहलवान? ਨਹੀਂ ਕੁੱਤਾ। यार वो क्यों? ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਨਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੀ ਲੱਗਾ ਹੈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਦੱਸਤੇ ਰਿਹਾ। यार वो कुश्ती किधर गई? ओके आ रही है, जरा एयरपोर्ट तो क्लियर हुई है ना। अच्छा फिर क्या हुआ? आपको हादसा ना बताना हमें। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 에어ਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ 'ਚ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸਨਸਨੀ ਖੇਜ਼ ਹਾਂਜੀ। न देखो ना, बजाय शर्मिंदा होने के साथ कह रहे सनसनी खेज। क्या क्या करते रहे वहां पे? ਓਏ ਬੜੇ नाक कटवाते हो पाकिस्तानियों के? ਲੈ ਦੱਸ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਜੈਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਾਹੂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਲੌਬੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲੈ। अमेरिका में भी इंडियन लॉबी बैठी? ਹਾਂਜੀ अच्छा जी, फिर क्या हुआ? ਕੁੱਤਾ ਬੇਹੋਸ਼, ਉਤੋਂ ਗੋਰਾ ਆ ਗਿਆ। अच्छा। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਸਨੇ ਮੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਓ। फिर? ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖੋਲਿਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਪੰਜੀਰੀ ਦਾ ਡੱਬਾ। पंजीरी? ਪੰਜੀਰੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਕਤ ਲਈ। ओए होए। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। तो फिर बताया इसने? ਲੈ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਪੈਂਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸੂਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਾਰੇ ਮਗਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਦਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚ ਖਸ਼ਖਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੋਂਦ ਕਤੀਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਮਰ ਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤਾਣ ਲਈਆਂ। क्यों? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਬੰਬ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ।
ਉਤੋਂ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੰਜ ਇਹਦੇ ਗੋਲ ਘਤੀਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ CNN ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਚਲਾਤੀਆਂ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਬੰਬ ਖਵਾਇਆ, ਉਹ ਪਾਟ ਗਿਆ। 15-20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ CNN ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੋਵੇਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ। ਨਹੀਂ ਹੱਸੋ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਨਾ, CNN ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਚੱਲਿਆ। ਲੋ ਜੀ, ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਕੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ, ਕਦੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਦੀ ਕੁੱਤਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਦੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਦੀ ਕੁੱਤਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। वो क्यों? ਕੁੱਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣ ਲਓ। ओ यार अब इससे बाहर निकलो। ਲੋ ਨਿਕਲੋ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੜਿਆ ਹੈ। तो अभी और मसाइल हैं। ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਓਏ ਉਹ ਤੋਤੀ ਵਾਲਾ ਕਿੱਸਾ ਨਾ ਸੁਣਾ ਦੇਈਂ। ਲਓ ਆਪੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। वो क्या था? ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਈਦਾ, हाँ जी, ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬੰਦਾ ਸਮਾਨ ਆਪਣਾ ਲੈਂਦਾ। कन्वेयर बेल्ट। ਹਾਂ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਦੋਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। बेल्ट के अंदर? ਲਓ ਜੀ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥੇ ਪੰਜੀਰੀ, ਦੂਸਰੇ ਧੋਤੀ। क्यों धोती क्यों? ਅੱਧੀ ਤਾਂ ਵੇ ਫਸੀ ਹੋਈ ਆਈ ਨਾ। और तो आधी इसने पकड़ी हुई। ਹਾਂ ਜੀ, ਹੋਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨੇ ਮਰਨਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਥੋੜੀ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਸਤਾਦ ਪਹਿਲਵਾਨ ਚੱਕਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਥੱਲੇ ਕਦੀ ਉੱਤੇ। ओए होए। ਸਾਰੇ ਗੋਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਖਬਰੇ ਕੋਈ ਆਈਟਮ ਕਰਨ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ $250 ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੈਲਟ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਕਾਲਾ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਗੋਰੀਆਂ ਤੇ ਗੋਰੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਣ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਪੰਜੀਰੀ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਹਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਇਸੇ ਹਾਲਤ 'ਚ ਅੱਧਾ ਡੱਬਾ ਪੰਜੀਰੀ ਦਾ ਵੇਚਿਆ ਉੱਥੇ। तो तुम क्या कर रहे थे उस वक्त? ਮੈਂ ਪੁੜੀਆਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜੀਰੀ ਦੀਆਂ। पंजीरी की पुड़िया। ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਅੱਲਾ ਲਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਧੋਤੀ ਛਡਾਈ, अच्छा, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਕੁੱਤਾ, वो वहीं खड़ा था। ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਜ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ, ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ओए, ਔਰ ਨਸਲ ਵੀ ਵਿਗਾੜੀ, ਲੰਮਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਿਰ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? इसे अल्सेशन कहते हैं, बहुत तगड़ा होता है। ਹਾਂ ਜੀ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਉਸਤਾਦ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। फिर क्या हुआ? अच्छा, अब एयरपोर्ट से बाहर निकलो। नहीं, Please, ये- नहीं नहीं नहीं, बाहर निकलो। ਅਜੇ ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, अब वो क्या रहता है? ਮਨੀ ਐਕਸਚੇਂਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚੇਂਜ ਕਰਾਣੇ ਨੇ ਪੈਸੇ। अच्छा, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਪੌੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। वो क्या? ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੋਲ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਛੋਟ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। तो क्या लेके क्या गया था? ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਠੀਪੇ। लाख रुपए के सर ये ठीपे के? कॉइन्स ना, कॉइन्स। ये 5-5 रुपए के। अच्छा, 5-5 रुपए वाले नहीं, वे 2-2 वाले ज्यादा सन। यार कमाल है, इतना चेंज इसने लिया कहाँ से? ਪਹਿਲਵਾਨ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। यार प्लीज। ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਬਣਾਈ ਜਗ੍ਹਾ, ਪਿੱਛੇ ਕੋ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਮਦਾਦ ਦਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਅੱਗੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੱਤ ਤੇ ਮਲਮ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਆਦਾ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਜੰਗੇ ਅਜ਼ੀਮ ਦੀ ਚੰਬਲ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਠੀਪੇ ਸੁੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਦੇ ਬੈਠਾ ਜੀ, ओए 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 ओए। 1 ਘੰਟਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ये नहीं, हाँ कॉइन्स तो लेते ही नहीं है वो। ਫਿਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚੇ ਉੱਥੇ। ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਠੀਪੇ ਨੇ ਕੋਈ 1200 ਚ ਵੇਚੇ ਨੇ। अच्छा ये बताओ, हॉक हॉगन किधर? ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋ, वो कभी नहीं आया। ਹਜੇ ਤੇ 에어ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। यार फिर निकलो ना एयरपोर्ट से प्लीज। ਉਹ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੀਏ ਨਾ। तो फिर क्या हुआ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਸੁਗਾਤ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ हैं। व्यूअर्स यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक व्यूअर्स, हमारा सेगमेंट है मेल मुलाकात और आज हमारे पास 2 किरदार हैं ट्रांसपोर्ट की दुनिया से। एक है अड्डा मैनेजर और एक कंडक्टर। ਸਲਾਮ ਬਾਬੂ ਜੀ। ਪਿੰਡੀ 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 ਵਾਲੇ 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 ਪਿੰਡੀ ਹਟ ਭਾਈ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੇ ਹੀਰੋ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੈਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ हैं? हाँ। ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੇ ਵੇਖ रहे हो ਪਿੰਡੀ चुप ਵਾਲੇ। करो। ਹੁਣ ਠੀਕ ਰਿਹਾ। सारे कंडक्टर्स इस तरह करते हैं। ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਕਾੜੇ ਵਾਲੇ ਉਕਾੜੇ ਵਾਲੇ ਉਕਾੜੇ ਵਾਲੇ ਉਕਾੜੇ ਵਾਲੇ ਉਕਾੜੇ ਵਾਲੇ ਉਕਾੜੇ ਵਾਲੇ ਉਕਾੜੇ ਵਾਲੇ। सड़कों पर ये जो मौत बांटते हैं ना, ये डेथ के, मौत के सौदागर हैं ये सारे, ये दोनों और इनके साथ इनके मालिकान, ये असल लोग हैं जो सही क्रिमिनल्स हैं। 75% हादसात 2 वजूहात की बिना पर होते हैं। एक नॉन फिटनेस और दूसरा वक्त से पहले पहुंचने की जो चाहत होती है ना,
जो एक पता नहीं क्या ख्वाहिश होती है इनकी, और उसमें एक बहुत बड़ा कल्प्रिट ये है, ये जो मोटा बैठा हुआ है। कितने लेके आया मैनू और फिटनेस सर्टिफिकेट क्यों नहीं लेते हो? कहता जनाब, गाड़ी का और किसका? और जनाब गड्डियां साडियां फिट ही ने, कौन कहना गड्डियां फिट नहीं है? कौन जाए उत्थे 2-2 घंटे लाइना च खलोता रहे, खज्जल होवे, फिर 200 रुपया भी देना पैंदा है। खैर ये 2-2 घंटे खड़े होना ये तो जुल्म है, अदरवाइज लाइन में तो लगना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है। अमेरिका में भी आप गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट लेना तो उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ता है, मोस्टली लाइन में क्यू में खड़ा होना पड़ता है। सर वैसे क्या वजह है, यहाँ पे क्यों तवज्जो नहीं दी जाती? इसलिए कि एनफोर्समेंट नहीं है। अगर इनकी गाड़ियां कर दी जाए बंद, लो देखा ना, यहीं पर मुसीबत पड़ जाती है। इन्हें जुर्माने किए जाए तगड़े, देयर एंड देन गाड़ियां इनकी इंपाउंड की जाए, आप देखिएगा 10 दिन के अंदर हो, ये तो इनकी मजाल ही कोई नहीं। अच्छा जिन्नी साडी बेइज्जती हो रही ना, मैंने लगता सी जहाज चलाने हैं गड्डी तो इन्नी बेइज्जती बनती नहीं है वैसे। अच्छा ये बताओ, अड्डा लेने पे इतनी लड़ाइयाँ क्यों करते हो? बोलो दसो जी, सारी गेम ही अड्डे दी होंदी है। अड्डे ते बसां खलोंदियां ने, अड्डे तो ही सारियां सवारियां मिलदियां ने सानू, उत्थे ही असीं गेम शुरू करनी होंदी है। वहीं पर पैसे खर्चते हो, बल्दिया को देते हैं, वहां पे बदमाशों को देते हैं और फिर अवाम से बटोरते हैं। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਬਾਈ ਦੀ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ हर गल का पता है ਤੁਹਾਨੂੰ। ट्रांसपोर्टर है तुसी? नहीं, ट्रांसपोर्टर्स को ही पता होता है सर, मीडिया को कोई पता नहीं। अच्छा ये बताओ, तेल की कीमतें जब हुकूमत बढ़ा देती है तो किराए तो फौरन बढ़ा देते हो, लेकिन जब तेल की कीमत कम होती है तो किराए नहीं कम करते। वो कम होते होते टाइम लगता है ना जी। कितना टाइम लगता है? और बीबी जितनी देर तक सरकारी नोटिफिकेशन पहुंचता है उन्नी देर तक कीमत फिर बढ़ जांदियां ने। हाय हाय हाय, कितना मासूम बन के उतनी देर तक, महीना महीना कई दफ़ा तुम कीमत वहीं रखते हो। हुकूमत के काम ने ना पाया ना, सी की करी हुन हुकूमत को भी पैसे लगवा देते हो। सर ये कैसे होता है? अंदाजा करो, यानी हुकूमत को करप्ट करते हैं, ये सेक्रेटरीज को करप्ट कर देते हैं। ਇਹ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕੋਈ ਥਾਣਾ ਨੇੜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਵਾਲੀ ਤਰਫ ਆਸੀ ਸਾਨੂੰ। अच्छा बात सुनो, तुम किरायों में भी पैसे रखते हो? ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਜੇ ਕਦੀ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ। ओए साडे ते एवें इल्जाम ला रहे तुसी करदे हो, तुसी विचों पैसे नहीं मारदे? ਕਿਹੜੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਪੈਸੇ? और जेरे तुम मालकां नूं घट दिंदे हो तुसी, वो आके सानू शिकायतां करदे हैं। ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ। ओए साडे मुंह ना लगी मैं तुहानूं दस्सिया ही। ਮੈਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਇੱਥੇ। ये क्या शुरू हो गया? ਕਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। अच्छा ऐसे ही रवैया मैंने सुना है कि जब सर ये सवारियों को बिठाते हैं तो बड़े प्यार से बिठाते हैं और वैसे उतारते बहुत बुरे तरीके से हैं, बिल्कुल ऐसे ही। ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਟਾਪ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਤਰਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਤਾਰੀਏ ਜੀ। नहीं, ये बात किसी हद तक ठीक है कि सुस्ती और काहली का इर्तिकाब करते हैं, मोस्टली सो रहे होते हैं गाड़ी में बैठे हुए। ਔਰ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾਲ 9 ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਮਾਮਾ ਮਾਮਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। और तुहानूं ऐसे गल दा गुस्सा चढ़दा है। ਔਰ ਹਰ ਔਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਭਾਂਜੇ ਨੂੰ ਫੜਨਾ। ਕਈ ਤੇ ਪਾਗਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਰੀਆਂ, ਬਿਸਤਰੇ, ਟੈਚੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ, ਲੱਗਦਾ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। पेटियां लेके कौन जाता होगा? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਕਦੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। बड़ी देर हो गई है, लेकिन मुझे पता तो है ना। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। और किस रूट पे चलते हो? ਮੈਂ ਜੀ ਉਕਾਲਿਓਂ ਚੱਲਦਾ, अच्छा, तो कहाँ जाते हो? ਤੋੜ ਚੰਦਰਾਕੇ ਇਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਕਾਲਿਓਂ ਸਤਗਰਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? सतगरा ਹਾਂਜੀ ज्यादा ज्यादा 20 मिनट का रास्ता। ਤੇ ਅਸੀਂ 1.5 घंटे 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। क्यों 1.5 घंटे में? क्यों तुम्हारी गाड़ी ठीक नहीं होगी? ਗੱਡੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। वो क्या करती? ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਡਾਡੇ ਨੇ ਜੀ ਉੱਥੋਂ। अच्छा जी। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਨ ਲਿਆ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਸਵਾਰੀ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਚੇ ਰੇ ਹਮਾਮ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ੇਵ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਉੱਥੋਂ ਆਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਖਲੋਤੇ हैं, यानी उतनी देर तक रुके रहे? रुको जी, चाचा ना हो गया रहमान मलिक हो गया। अच्छा, ये रहमान मलिक तुमने किस निस्बत से कहा है? हमाम की निस्बत। ये फजूल आदमी हमाम की ये गल कोई लुकी छुपी है जनाब, ये दसो। और सर एवें बकवास कर रहा है, वो तैयारी चो नहीं लाया सी उन्होंने, ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਬਸ ਕਰ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗੱਡੀ ਕੱਢੋ, ਉਹ ਗਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ।